हाय एवरीबॉडी। सो ये है वर्किंग वेडनेसडेज एंड आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो हैं ओमकार चिटनिस। ही इज़ अ फैशन फोटोग्राफर। लेट मी ट्राई एंड ऐड हिम। हाय हरदीप। हाय रितिका। पिकाचू इज हियर। ओके। तेजस शाह photography says hi, hello. I hope you're all well. So today we're going to talk about what it is to be a fashion photographer. Okay. हाय Hi, यार, what's up? बहुत How अच्छा are फ्रेम you? बनाया पीछे। This is my general house setup. Like I have these lights generally. This is like a ओके too much light for live because दिखना चाहिए अच्छे से तो मैंने थोड़े लाइट वाइट लगाए ओके otherwise मस्त chill शांत रहता है. या ऑल Tell राइट। me what's up. वेलकम ओमकार टू वर्किंग वेडनेसडेज Thank एंड you. पहले मैं सबको इंट्रो दे दूं। सो ओमकार चिटनिस इज अ फैशन फोटोग्राफर. He is a professional photographer with a degree in photography from one of the, what should I say, world renowned institutes of JJ Arts. Yes, I'm product of JJ Institute of Applied Arts. So yes. Right. And he has shot with, probably all the magazines in India now, Not really, but yeah, like majorly. working towards it. Right. So, all right. So, let's start working Wednesdays. So, why I wanted to have a photographer, यार, was कि, जो basic jobs होती हैं उसके बारे में तो काफी लोगों को पता होता है. They know what it is for, let's say a doctor or a policeman or, engineer. But photographer is something जो होता तो हर शहर में है. Like even if you go to, like let's say Antarctica also, I'm sure they carry somebody whose job it is to click, the Yes. pictures of voyage and even research and everything. तो फोटोग्राफर होता तो हर जगह है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, बट nobody really gives them that importance or talks about them too much. Like it's just like another job. Like if you go to any wedding or if you go to any event or like something, there are photographers, but you hardly get to talk to them or know them or know what Yeah, their life happens. is like. It's like Right. even it happens still like at times, there are celebrities or any people like who post pictures and they give credit to all the team and there is no credit to photographers. And I'm like, अरे ये picture click किसने की है? Like because at times you like the picture and you want to see कि ये कौन photographer है, किसका काम है, मुझे और देखना है. So then Right. I'm like कि अरे कैसे ढूंढूं इस photographer को? So होता है. Right. So we'll start with the questions, yeah. Yeah. So the first basic question that I wanted to ask you was कि कितने टाइप के, कितने काइंड्स के फोटोग्राफर होते हैं? Uh, देर आर मेनी टाइप्स और आज के जमाने में तो और भी डिटेल्ड काम हो रहा है. देर आर फैशन फोटोग्राफर्स, देर आर ऑटोमोबाइल फोटोग्राफर्स हु वर्क ओनली विद ऑटोमोबाइल्स, दे डोंट वर्क विद पीपल जनरली. देर इज जो न्यूज़पेपर्स के लिए काम करते हैं, जो मैगजीन्स के लिए काम करते हैं. Right. देन देर आर फोरेंसिक फोटोग्राफर्स जो फोरेंसिक लैब्स जो Crime. होती है, क्राइम और वो सब. लाइक I don't have much knowledge about it, but Right. I But know कि fingerprints and all that, basically, yes, right? yes. So वो photographers होते हैं. So product photographers होते हैं, food photographers होते हैं. Like even in food and product ना, it's a Right. different thing. So there Right. are photographers who just shoot food, and there are photographers who shoot products. Yeah. So उनकी है फोटो फिर बहुत. हमें, I think we find their pictures in Swiggy and all that, right? Yes, absolutely. And Yeah. like it's their job. And when I was studying photography, तो ये समझ में आ रहा था कि जो इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है एट टाइम्स वो उतना है नहीं शायद से, या फिर एक सर्टेन एंगल है या सर्टेन लाइट यू आर यूजिंग और सर्टेन लेंस यू आर यूजिंग, यू आर मेकिंग इट मोर बिलीवेबल, मोर रिलेटेबल. सो लाइक इफ यू नो ऐसे छोटी छोटी सी हैक्स है. अगर आइसक्रीम शूट करना हो तो आइसक्रीम पिघल जाती है, सो दे डोंट यूज Right. आइसक्रीम, दे यूज Real डिफरेंट ice cream. मटेरियल्स. Yeah. So Yeah. it's Yeah. not actual ice cream. Yeah. So I did ये one ad for Quality Walls
हाँ, and the ice cream was basically, it was made up of aloo, potato, and then yeah, it was mashed potato. colored. Yes, yes, they Yeah, make it because the exact texture you get. right. So हाँ, like that is So the there are thing. various, so मतलब जैसे कि डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन होती है, and a lot of people have specializations. You have that in photographers as well, right? Yes, yes, absolutely. So I think photography, when you start photography, you start with the camera, you start with the equipment. What is your equipment? What camera you are using, or maybe you're Mhm. shooting on phone. Even that is your instrument, you know. Right. So मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत आपकी कैमरा से होती है, बट उसके Hmm. बाद में आपको खुद को एक रिलेशन होता है कि मुझे फूड फोटोग्राफी करनी है, या मुझे फैशन में जाना है, या फिर मुझे यू नो आई वांट टू वर्क विद द पुलिस एंड लाइक क्राइम एंड फोरेंसिक दिस थिंग. Right. तो ये बाद में डेवलप हो जाता है, जब जितना आप अपने कैमरा के साथ कनेक्ट होते हो, अपने कैमरा से आप एक्सप्लोर करते हो, तो आपको समझ में आता है कि मुझे सनसेट का फोटो लेना है, या फिर लोगों का लेना है यहाँ. किसी इंसान का फोटो लेना है जो सनसेट के आगे खड़ा है. सो यू नो Hmm. यू वो अंदर से कनेक्शन होता है कि तुम्हें क्या करना अच्छा लग रहा है, एंड दैट इज Right. हाउ आई थिंक, मुझे लगता है कि आप उस तरफ चलने लगते हो, वो तुम सिलेक्ट करते हो. Okay, so I wanted to ask you यार कि लोगों को ऐसा परसेप्शन है कि फोटोग्राफर कौन होता है जो क्लिक का बटन दबाता है, ओ या बट बट आई वांट टू आस्क यू, और क्या क्या काम है, लाइक व्हाट ऑल इज द जॉब ऑफ अ फोटोग्राफर? I'll tell you, clicking button is the last job of photographer. Is the last job. Like ओके. not even the last job. I think it's the easiest job because उसके बाद में भी बहुत काम होता है. Like you know, post राइट. production होता है. राइट. We'll talk about that also. But click का button act अभी तो अपना जो सॉफ्टवेयर है and like the cameras you are getting, वाईफाई होता है, सब इतना डेवलप हो गया है ना कि मैं कैमरा सेट कर रहा हूँ मेरे ट्राइपॉड पे, और मैं जाके लैपटॉप से भी क्लिक कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे ओ. लैपटॉप पे मुझे बड़ी फ्रेम दिख रही है. आई डोंट हैव टू राइट. लुक फ्रॉम द व्यू फाइंडर ऑफ द कैमरा. ओ. ओके. तो ये भी होता है, ऐसे बहुत बार होता है कि जब आपको एक स्पेसिफिक शॉट चाहिए, तभी मैं मेरे असिस्टेंट को बोलूंगा कि तू कैमरा से क्लिक कर, आई एम वॉचिंग ऑन द लैपटॉप. तो मैं क्लिक भी नहीं ओके. कर रहा हूँ, राइट. वो क्लिक राइट. वो कर रहा है, बट मुझे ये देखना है कि लाइटिंग क्या करनी है, शॉट क्या चाहिए, बिकॉज अगेन मैं फैशन इंडस्ट्री में काम करता हूँ, राइट. एडवर्टाइजिंग राइट. इंडस्ट्री में काम राइट. करता हूँ. सो देर आर पीपल हु आर टेलिंग मी, अगर मैं डिजाइनर के लिए शूट कर रहा हूँ तो डिजाइनर मुझे बोल रहा है कि ये कलर ऐसा दिखना चाहिए, या फिर ये जो टेक्सचर है कपड़े का ये ऐसा दिखना चाहिए. सो मुझे वो देखना बहुत जरूरी है मॉनिटर पे कि वो एग्जैक्ट मिल रहा है या नहीं, या फिर वो टेक्सचर आ रहा है या नहीं. सो फोटोग्राफर्स के क्लिक के पहले और क्लिक के बाद में भी बहुत काम होते हैं. लाइक अगर फ्रेमिंग. आप, हाँ, यू सेइंग व्हाट? फ्रेमिंग एंड सो मेनी थिंग्स, एग्जैक्टली राइट? नहीं, मतलब फ्रेमिंग तो है ही. उसके पहले अगर स्टार्ट से बात की जाए तो, राइट. अगर फॉर एग्जांपल मुझे आई हैव टू शूट अ सेलिब्रिटी, so I need to understand कि what kind of celebrity that is. Is he a sport person? अगर वो स्पोर्ट्स में है, या फिर एक्टर है, या फिर पॉलिटिशियन है, तो मुझे एक दिमाग में फ्रेम बनानी पड़ती है कि उसका बैकग्राउंड क्या होगा, या फिर उनके शायद से कपड़े क्या होंगे, उसका टोन क्या होगा. बिकॉज आई एम नॉट शूटिंग, मैं कोई रैंडम इंसान शूट नहीं कर रहा हूँ. इट्स अ पर्सनैलिटी, उस राइट. इंसान के पीछे एक पर्सनैलिटी है. तो मुझे वो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो पिक्चर में वो पर्सनैलिटी नहीं आएगी ना उभर के, तो मजा ही नहीं आएगा. अगर मैं लिएंडर पेस को मॉडल बना के पेश करूं तो राइट. आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो ही इज अ ट्रू. स्पोर्ट्स पर्सन. राइट. तो आई थिंक वो बहुत, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कि आप किसके लिए शूट कर रहे हो, आप क्या बेचना चाहते हो. लाइक बेचना इन नॉट टर्म्स ऑफ सेलिंग, बट आपको क्या कहना है, आपके पिक्चर में आपको क्या कहना है, ये अगर आपको पहले पता हो ना. बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है ना कि आप क्लिक कर रहे हो और समझ में आता है कि मजा नहीं आ रहा है, कुछ है नहीं इसमें, मतलब है अच्छा, इट्स अ नाइस पिक्चर. तो शायद से जो फोटोग्राफर कहना चाह रहा है वो नहीं आ रहा है वो पिक्चर में से बाहर, तो मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ.
सो आई थिंक फोटोग्राफर इज बेसिकली अ डायरेक्टर। तुम्हें क्या कहना है, आपको क्या कहना है, ये आपको खुद को पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में फिर आप सोच सकते हो कि मुझे लेंस कौन सी यूज करनी है, मुझे कैमरा कौन सा यूज करना है, या मुझे डे लाइट में शूट करना है, या मुझे लाइट्स मंगाने हैं, आई हैव टू सेट अप द लाइट। तो ये बहुत आगे वाली भी बहुत चीजें होती है जो आप क्लाइंट से बात करते हो कि आपको क्या चाहिए। आप मतलब ऐसे भी मुझे क्लाइंट्स मिले हैं जो कपड़े बेच रहे हैं, बट दे लाइक कि मुझे मेरा कपड़ा नहीं दिखा तो चलेगा, आप इमेज क्रिएट करो, आई वांट मूड। तो मुझे समझ रहा है कि अच्छा इनको क्या चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल जब आप कमर्शियल फोटोग्राफर के नाम पे काम कर रहे हो मार्केट में, तो किसी की चीज आप बेचने के लिए उनको हेल्प कर रहे हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड उनका प्रोडक्ट क्या है, आपको क्या दिखाना है। ऐसे भी बहुत बार होता है कि मॉडल सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप एक चीज बेच रहे हो और मॉडल इतना ओवर पावर कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहा है, तो फिर शायद से वो फोटो काम ही नहीं करेगा। वो फोटो शायद से बहुत अच्छा होगा, लाइक इट मस्ट बी अ ब्रिलियंट पिक्चर, बट क्लाइंट बोलता है कि ये मेरे लिए काम नहीं करेगा बिकॉज मेरा प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोटोग्राफी में, आई थिंक कि आप किस लिए पिक्चर क्लिक कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। और फॉर दैट मैटर आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो ना, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आई एम लाइकिंग दिस एंड दैट्स व्हाई आई एम क्लिकिंग दिस पिक्चर। So I think that is very important. Okay. So another question that I wanted to ask you was that, yeah, actually photography, आपने तो 4 साल का कोर्स किया है, पर there are so many people जो सपोज या तो छोटे शहर रहते हैं या उनके शहर में है नहीं, या फिर बिकॉज ऑफ मनी दे डोंट वांट टू गो टू एंड डू अ डिग्री। तो आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल जो कि छोटे कोर्सेज होते हैं या फिर किसी को असिस्ट करते हैं, या मतलब छोटे शहर में भी कुड बी अ वेडिंग फोटोग्राफर या अ नॉर्मल फोटोग्राफर। तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक व्हाट आर द बेसिक्स दैट शुड बी देयर इन अ फोटोग्राफी कोर्स? मतलब क्या बेसिक्स हैं दैट you can say it's a good course? Or see, I think for beginner na कैमरा समझना is enough, कि कैमरा कैसे ऑपरेट होता है, व्हाट इज अपर्चर, व्हाट इज शटर स्पीड, व्हाट इज टेम्परेचर। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निकल चीजें है ना, वो समझना इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो। अदरवाइज आई डोंट बिलीव कि मोबाइल से क्लिक कर रहे हो तो यू आर अ लेसर फोटोग्राफर। लाइक आई कांट बी जस्ट फोटोग्राफर क्योंकि मुझे फोटोग्राफी के पैसे मिलते हैं। अगर आप अच्छे फोटोज क्लिक करते हो तो आप फोटोग्राफर हो। सो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो या नहीं, ये दूसरी बात, अलग बात है। बट हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई जाओ, या फिर इवन देयर आर सो मेनी गुड ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज भी है। और ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से क्या हुआ है ना कि अब मैं लंदन का ऑनलाइन कोर्स यहाँ बैठ के कर सकता हूँ। आई डोंट हैव टू फ्लाई डाउन देयर। तो इस वजह से अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेल हो रहे हैं लोगों को। सो आई थिंक टू स्टार्ट विथ आप एक कैमरा को समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ कैमरा वर्क्स, बिकॉज दैट इज योर इंस्ट्रूमेंट। वो आपका टूल है, आप उसके माध्यम से आपकी कला प्रेजेंट कर रहे हैं। सो है मतलब जैसे फॉर यू इफ यू आर एन एक्टर, स्टेज आपका माध्यम है और योर बॉडी इज योर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे लिए हमारा कैमरा है, तो कैमरा समझ लेना, बिकॉज कैमरा के लिमिटेशंस भी समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरा की कि आप कैमरा के साथ क्या कर सकते हो और कैमरा के साथ आप क्या नहीं कर सकते। तो अगर मुझे चाहिए एक शॉट की जिसमें बहुत धुआं है और बहुत ड्रामा है, बहुत कुछ है, एंड वो मुझे कैमरा में शायद से नहीं मिलेगा, या फिर अगर हम अभी आज के जमाने में बात कर रहे हैं तो शायद से सेलिब्रिटी को टाइम नहीं है, आधे घंटे में शॉट निकालना है। तो आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं पोस्ट प्रोडक्शन में क्या कर सकता हूँ, और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मुझे फ्रेम क्या चाहिए। अगर अगर मुझे रोटी बनानी है तो मुझे गेहूं का आटा रेडी रखना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कैमरा को पहले समझें,
और कोई भी बेसिक फोटोग्राफी कोर्स जो होता है ना, उसमें कैमरा के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है आपको। और उसके आगे मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आपको ऐसा लगे कि ठीक है मुझे बेसिक समझ में आ गए, उसके राइट, बाद में आप है और आपका कैमरा है, देन यू एक्स जस्ट गो वेरी नट्स। मच, हाँ, ओके, क्योंकि आज मैं अगर 4 बजे एक तस्वीर खींचूंगा और कल अगर मैं 4 बजे सेम टाइम सेम इसकी तस्वीर निकालूंगा, वो तस्वीरें सेम नहीं होंगी। बिकॉज राइट, शायद से पत्ते हिल रहे थे एक फोटो में, एक फोटो में पत्ते हिल नहीं रहे थे, या फिर सड़कों में फूल थे आजकल सड़कों में फूल नहीं थे। तो एवरी टाइम आप कुछ नया डेफिनेटली सीखते हो। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके फोटोज नहीं आती अच्छी, जो आपको लग रहा है वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप नहीं दिखा सकते कि मुझे राइट, ये दिखाना है, मुझे ये शूट करना है, बट वो कैप्चर नहीं हो रहा है। तो अगेन यू विल नो कि क्या नहीं करना है। तो जितना ये इम्पोर्टेंट है कि समझना क्या करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये नहीं करना है, तो उसके लिए राइट। आपको कैमरा समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। Somebody is asking, yeah, Hardeep is asking, what is the role of umbrellas with light? रूल ऑफ अम्ब्रेलाज ऑफ लाइट, आई नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मैं आई एम अ काइंड ऑफ फोटोग्राफर। मुझे अगर आप बैठ के पूछो कि ये कैसे होता है, तो शायद से मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊं, बिकॉज मैं इतना इन द मोमेंट होता हूँ ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइट चाहिए, ये लाइट चाहिए, ठीक है, अच्छा मुझे जो चाहिए वो मिल गया, अच्छा नहीं Right, ये नहीं चाहिए, लाइट बंद कर दो। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाता कि right. आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज जितना आप पढ़ते हो उतना Mm, आप बहुत उसकी बारीकियां आपकी बहुत आपके mm, दिमाग में फिट होती जाती है। तो mm. आप ना, मेरे साथ जो हुआ है मैं बताता हूँ, जनरली लोगों के साथ भी यही होता है कि आप स्टार्ट करते हो विद डे लाइट, आप Right. जनरल नेचर की पिक्चर्स शूट करते हो, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फ्रेम, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ लाइट वर्क्स, आप लाइट कैमरा में Right. कैसे आ रहा है, लाइट कैसे, Mm, येलो लाइट चाहिए मुझे, थोड़ा सा ब्लू लाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँ। mm. ये आप डे लाइट में से बहुत सीखते हो। एंड व्हाट इज डे लाइट? डे लाइट इज नेचर। आप Right. नेचर से बहुत कुछ सीखते हो। तो वो होने के बाद आप जाते हो अम्ब्रेला एंड यू नो दीज लाइट Mm. शेपर्स वी कॉल, कि Right. कि मुझे पैरा यूज करना है, या फिर मुझे सॉफ्ट बॉक्स यूज करना है, या फिर मुझे रिंग फ्लैश Mm. यूज करना है। सो मेरे लिए ऐसा है ना कि देयर इज नो रूल, देर इज Okay. एब्सोल्युटली नो रूल कि ये करने के लिए ऐसा ही करना होता है। बिकॉज मैंने Mm. ये किया है कि जब मेरे पास एक लाइट होती है ब्रॉन, जो फोटोग्राफर्स हैं उनको पता Yeah. होगा यहाँ पे कि Yeah. ब्रॉन कलर नाम की जो कंपनी है उसकी पैराबोला एक लाइट होती है जो बहुत बड़ी होती है। हमने जो शूट किया था ना एक साथ, Okay. उस Go शूट पे ahead. भी मैंने वो लाइट मंगाई थी, बहुत बड़ी वाली लाइट होती है। Okay. तो Okay. पहले तो ऐसे होता था कि जब मैं असिस्ट करता था तब Mm. पैसे नहीं होते थे उतने रेंट करने के Right. वो लाइट, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव लाइट। तो Yeah. हम लोग ये देखते थे, मेरा जो मेंटोर था उसके Mm. फोटोज देख के हम ये सोचते थे कि लाइट तो बहुत सही है यार, बट ये लाइट Right. कैसे क्रिएट करे। मेरे Mm. अपने पास अभी पैरा तो है नहीं। तो देन वी यूज्ड Right. टू ट्राई डिफरेंट लाइट्स, और यहाँ से दो, नीचे से दो, साइड से, ये कर करके आई Mm. मैनेज टू गेट द वेरी क्लोज रिजल्ट ऑफ पैरा। तो वो भी होता है Mm. कि ऐसा नहीं है कि एक रिजल्ट के लिए एक स्पेसिफिक लाइट ही यूज करना है, या फिर देर इज एनी स्पेसिफिक रूल फॉर इट। तो Mm. जैसा आप एक्सप्लोर करोगे ना, वो Yeah. आपका रूल बन जाता है। और जब आप एक्सप्लोर करते करते आप अपने रूल बनाते हो ना, तो उसके आगे Mm. जाके आप वो रूल ब्रेक भी करते हो, बिकॉज वो भी करने में बहुत Right. मजा आता है। Right. Right. So yeah, somebody is asking, Shubham Gaur sir, can we please talk about how does an amateur photographer excel to become a professional? What are the key points to be taken in consideration? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी आर्ट है ना, उसको Hmm. आप जब कमर्शियल करते हो, उसका Hmm. एक वे होता है। ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट वेज, बट देयर इज अ वे। Right. आप Right. ऐसे नहीं हो सकता कि मैं फोटो खींच रहा हूँ और मैं बोलूंगा ये लोग खरीदो। Hmm. आप एमेच्योर फोटोग्राफर्स, आई वोंट से, आई वुड से कि जो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे Right. हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी फोटोग्राफर्स हु आर एमेच्योर फोटोग्राफर्स, बट उनका काम Hmm. इतना खूबसूरत है, इट जस्ट वो प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हैं।
बट वो राइट, फोटोग्राफर बहुत अच्छे हैं। बहुत है। तो आई थिंक शुरू में आप एक तो बहुत एक्सपेरिमेंट कीजिए। लकीली आपको अभी ये टेंशन नहीं है कि रोल खरीदना है, फिर वो डेवलप करवाना है। इट्स ऑल डेवलप करना है। डिजिटल नाउ। तो आप नहीं अच्छा लगा आप डिलीट कर दो। सो हम्म आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतने ही आप एक्सेल हम्म करोगे फोटोग्राफी में, और फॉर दैट मैटर एनी आर्ट। आई थिंक जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना क्योंकि मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे नहीं है कि मुझे फैशन करना है तो मुझे, मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि आई एम अ फैशन फोटोग्राफर, बट जिंदगी का 1 साल मैंने वेडिंग्स भी किए हैं। एंड आई हैव डन कैंडिड वेडिंग्स। आई यूज्ड टू डू ओनली कैंडिड बिकॉज मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच में जाना, मुझे अच्छा लगता है लोगों को कनेक्ट करना। तो और जब आप वो करते हो ना, जब मैंने कैंडिड वेडिंग की ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैं बॉस नहीं हूँ। यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता कि थोड़ा बाजू में हट, मुझे फ्रेम नहीं मिल रहा है, बिकॉज वहां पे शादी हो रही है, आप ऐसे बोल नहीं सकते। गेस्ट्स भी हैं, हाँ, तो ना रिलेटिव्स मुझे हैं। मेरा ब्रेन अलग से ट्रेन करने में हेल्प हुई कि एट टाइम्स यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, स्टिल यू वांट टू गेट अ ब्रिलियंट पिक्चर। वो आप कैसे कर सकते हो? तो वो राइट। मुझे ना आज काम आता है व्हेन आई एम शूटिंग अ सेलिब्रिटी फॉर 5 मिनट्स। लाइक ऐसे होता है कि सेलिब्रिटी को टाइम नहीं है, 5 मिनट दिए एंड यू हैव टू शूट अ कवर शॉट। ओह। तो वो दिमाग एकदम ब्रिलियंटली काम करने लगता है कि ओके ये लाइट है, ऐसा लाइट है, इधर से यहाँ ये करना है मुझे। तो राइट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके आगे देन व्हेन यू वांट टू वर्क इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, आप राइट। बहुत अच्छा काम देखिए। अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में काम करना है तो आप बैठिए इंटरनेट पे, और आजकल तो इंटरनेट पे इतना सब अवेलेबल है ना राइट। राइट। कि आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा। सो जस्ट सर्च कि कौन अच्छे फोटोग्राफर्स है फैशन इंडस्ट्री में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक यू राइट। हैव टू या बी, या इफ यू हैव टू शूट फूड फोटोग्राफी, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, फूड अच्छा लगता है, आप बैठो इंटरनेट पे, देखो कौन अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, उनका काम देखो, राइट। देखो कि वो अच्छा क्यों है, समझने की कोशिश करो कि वो क्यों प्रोफेशनली काम कर सक रहे हैं, व्हाई पीपल आर पेइंग देम एंड हायरिंग देम। राइट। क्योंकि जब आप प्रोफेशनली काम करते हो ना, आप 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 अपने मर्जी के बादशाह नहीं रहते। राइट। देर इज ऑलवेज वन पर्सन। अगर कोई डायरेक्टर है या फिर डिजाइनर है, या फिर अगर मैं मैगजीन के लिए शूट कर रहा हूँ तो मैगजीन का एडिटर है। राइट। हर एक मैगजीन का एक, अगर आप देखो तो फिल्म फेयर स्टाइल। का एक अलग जोन है, वोक का एक अलग जोन है, मैगजीन का एक अलग जोन है। You know, GQ is also a men's magazine and Maxim is also men's magazine. राइट। बट हर एक मैगजीन का एक टोन होता है, और हर एक मैगजीन की एक फिलोसफी होती है, हर एक डिजाइनर की एक फिलोसफी होती है। तो आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में क्या चल रहा है और वो क्यों चल रहा है। जस्ट राइट। बिकॉज जनरली लोग क्या करते हैं ना कि मार्केट में क्या चल रहा है ये समझ के रुक जाते हैं कि मार्केट में अच्छा ये सब चल रहा है तो मैं भी वही करूंगा, इट्स फाइन। बट वो क्यों चल रहा है इस बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसका अगर उसके रीजंस आपको जब पता चलने लग जाते हैं ना, तो आप अपने यू कैन एक्सप्रेस इन योर वे। राइट। जब आप कनेक्ट होते हो, बिकॉज तभी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं डिजाइनर से मीटिंग करने जाता हूँ, या फिर इवन फॉर दैट मैटर एक्टर या फिर मॉडल है जिसको पोर्टफोलियो बनाना है, सो राइट। पोर्टफोलियोज मैंने बहुत बार देखे हैं कि पोर्टफोलियोज लोगों के इतने सिमिलर लगते हैं, सिर्फ राइट। मॉडल्स बदलते हैं और पिक्चर्स आर वेरी सिमिलर। सेम। या तो या हाँ, मतलब वो एकदम प्रीसेट जैसे हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जब मैंने स्टार्ट भी किया था ना पोर्टफोलियोज बनाना, तभी भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उस इंसान से एक बार मिलना है, एक या थोड़ी देर मुझे बात करनी है, मुझे समझना है कि वो क्या, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। राइट। तो इट्स नॉट कि जस्ट मुझे एक्टर है तो मुझे 6 लुक्स करने हैं, अलग अलग लुक्स में उसके पिक्चर्स खींचने हैं। वो मुझे ये समझना है कि वो कौन से टाइप का इंसान है, उसे राइट। क्या करना पसंद है। तो व्हेन यू लर्न, जब आप अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो ना, आप लाइक अपने सब्जेक्ट को स्टडी करते हो ना, तो राइट। आई थिंक वो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाता है। आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। कि मुझे एक डिजाइनर के लिए शूट करना है तो मुझे
उसको जो चाहिए वो देना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू नो यू आर वर्किंग फॉर हिम, ही इज हायर्ड यू, उसने आपको हायर किया हुआ है, ही इज गिविंग यू मनी फॉर दैट. तो इट्स नॉट लाइक फाइन आर्ट फोटोग्राफी की मुझे जो चाहिए मैंने क्लिक कर दिया. अपने बहुत इंपॉर्टेंट है कमर्शियल फोटोग्राफी के लिए कि मार्केट के लिए आप जब काम करते हो तो मार्केट के बारे में जानना, मार्केट में जो अभी काम कर रहे हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देखो, बहुत अच्छे पिक्चर्स देखो, अच्छे फोटोग्राफर्स का काम देखो, बिकॉज यू विल ऑल्सो नो कि सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में इतनी चीजें जाती है ना, हमें नहीं समझता. हमें ऐसे लगता है कि अरे ठीक है देख लिया, बट वो रहता है यहाँ पे. सो अच्छा काम जब आप देखोगे ना, अब हम लोग जो कहते हैं कि अरे आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड, मैं बहुत इंस्पायर हो गया इसका काम देख के, क्योंकि उस फोटो ने आपको कहीं छुआ है. आप इंस्पायर हो गए, मतलब कुछ तो अंदर उस पिक्चर ने आपको छुआ है. तो जस्ट थिंक कि वो क्यों छुआ है, क्या कनेक्शन है. तो आई थिंक जब आप इस लेवल में आके काम करते हो ना, तो काम इजी और मजेदार दोनों बनता है. बिकॉज बहुत बार ना लोगों को प्रेशर होता है कि मार्केट में जाना है, काम करना है, मुझे भी था ऑफ कोर्स. तो बट जब आप क्लियर रहते हो कि मुझे क्या करना है और मुझे क्यों करना है, बहुत सीधा सिंपल हो जाता है आपके लिए. So now I want to ask you, यार, very interesting question. This is that how did you know कि photography is a passion for you? आप कब discover किया? What was it like for you? मैं 7वीं कक्षा में था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे JJ स्कूल ऑफ आर्ट में जाना है. बिकॉज आर्ट से लगाव था, पहले से ही था, बट फैमिली में कोई था नहीं फोटोग्राफी, या ऐसे इमीडिएट फैमिली में कोई था नहीं. तो तब अपने पास जनरली हर फैमिली में एक वो कोडैक का एक कैमरा होता है जिसमें रोल डलता है और 36 पिक्चर्स आती थी ना. 36 पिक्चर एग्जैक्टली. तो कभी कभी तो उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें होती थी. अगर आप रोल अच्छे से माउंट करो ना तो शायद से आपको 37 भी मिल जाती थी कभी. राइट. तो वो एक अलग मजा आता था कि अरे 37 एक्स्ट्रा मिला. तो वो हमारे पास वो कैमरा था और हम जहाँ कहीं घूमने जाते थे तो आई यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ नेचर, क्योंकि वही से आई थिंक द वे आई सेड कि नेचर आपको इंस्पायर करता है. तो मैं सनसेट की फोटो ले रहा हूँ, मैं किसी पेड़ की फोटो ले रहा हूँ और रैंडम एक्सपेरिमेंट करता था. मतलब अगर मैं अभी सोचूं ना तो मैं ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फनी एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए हैं, बिकॉज ऐसे पिक्चर्स नहीं आएंगी. बट आई वॉज, और मे बी आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग एट टाइम्स, कि मुझे ये नहीं था कि अरे फोटोज खराब हो गई तो, लेकिन हाँ हो गई तो हो गई और निकालेंगे, ऐसे था. तो जब भी हम कहीं ट्रिप पे जाते थे तो मैं नेचर के पिक्चर्स क्लिक करता था और मेरे पापा मम्मी कहते थे कि अरे हमारी फोटो निकालो, ये क्या बात है. तो मुझे ऐसा लगता है आपको तो मैं रोज देखता हूँ, मैं मतलब मुझे ये क्लिक करना है. सो दे विल आल्सो लाइक कि ठीक है आपको अच्छा लगता है तो आप करो क्लिक. एंड दैट इज वेयर आई थिंक वो थोड़ा बॉन्डिंग शुरू हुआ मेरा पिक्चर्स को लेके. और होता है ना कि जो आपकी इंटरेस्ट है ना, आप उनको देखने लगते हो. अगर मैगजीन भी अगर मेरे हाथ में आ रहा है, तो अगर किसी और का पैशन राइटिंग है तो वो मैगजीन में जो लिखा हुआ है वो पढ़ेगा, बिकॉज ही इज कनेक्टिंग टू द राइटिंग, बिकॉज उसके अंदर एक राइटर है. तो मेरा ऐसा होता था कि मैं पिक्चर्स देखता था, मुझे पिक्चर्स बहुत अट्रैक्ट करती थी कि, एंड स्पेशली अबाउट मॉडल्स एंड एक्टर्स, बिकॉज वो फैशन का कीड़ा था तभी से. तो 2-3 पिक्चर्स मुझे अभी भी याद है. एक मधु सप्रे और मिलिंद सोमन की एक जो एड आई थी जिसका बहुत बड़ा बवाल हुआ था उस टाइम. I don't know. The one where they were not wearing clothes or something like that. Yes, there is only snake around them. Yeah, they're standing. तब मैं बहुत छोटा था और तभी इतना बवाल हुआ था उसका. और आई वाज लाइक अरे कितनी खूबसूरत फोटो है, इसमें बवाल करने जैसे क्या बात है. बहुत ही क्लासी, बहुत ही एस्थेटिक फोटो है. बट तभी उस टाइम वो नहीं समझ में आता था कि ये क्यों अच्छी लग रही है या क्यों अच्छी नहीं लग रही है. तो मैं ऐसे तस्वीरें ना देख, मतलब आई यूज्ड टू जस्ट कीप वाचिंग देम.
तो वो टाइम से वो थोड़ा शुरू हुआ कि फोटोग्राफी करनी है। और जब मेरी 12th हो गई, 12th होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो जेजे में अभी अप्लाई करते हैं। मुझे जेजे में तो कंफर्म जाना था। राइट। तो 4 इयर्स का कोर्स जो हमारा होता है उसमें फर्स्ट सेकेंड ईयर इज बेसिक और थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज योर इलेक्टिव, योर स्पेशलाइजेशन। तो थर्ड ईयर में फोटोग्राफी हमारे इंट्रोड्यूस हुई हमारे क्लास को। एंड दैट इज व्हेन आई वाज लाइक कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बहुत से हमारे क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनको बाकी काम करना बहुत बोर लगता था, इसीलिए वो आ गए थे फोटोग्राफी। बिकॉज अच्छा। उनके लिए ऐसा था कि हाँ चल इजी है यार, बैठ बैठ के 10-10 घंटे के असाइनमेंट पेंट करने से अच्छा है कि हम कैमरा ले लें और और चिल खींचिए। करें। बट मेरे लिए बहुत ही क्लियर था कि आई लाइक दिस इंस्ट्रूमेंट, मुझे इसके साथ कुछ क्रिएट करना है। तो वो थोड़ा बचपन से ही 7th स्टैंडर्ड से जो स्टार्ट हुआ तो वो फिर धीरे धीरे बढ़ता ही गया। राइट। तो यार एक तो कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा था, एंड आई आल्सो वांटेड टू आस्क दैट क्वेश्चन, व्हिच इज दैट यू नो फोटोग्राफी इज अ फ्रीलांस प्रोफेशन। ऐसा नहीं है कि आपकी फिक्स्ड, अगर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी हो सकती है, बट अदरवाइज इट्स अ फ्रीलांस प्रोफेशन, राइट? मतलब आपको नहीं पता कि आप बहुत काम आएगा या 4 वेडिंग आएंगी या नहीं आएंगी, या यू नो लाइक हाउ मेनी शूट्स यू विल हैव और नॉट हैव। So, what do you feel about the highs and lows of freelance profession? How much do they vary? Yes, they are quite volatile Mm. at times. Mm. पहली चीज मुझे ऐसी लगती है, बिकॉज मैं खुद भी इस प्रोसेस से गया हूँ। जब आप स्टार्ट करते हो ना, लकीली एटलीस्ट दीज अभी के जो जनरेशन है ना, उनको डिजिटल मीडिया के थ्रू बहुत सी चीजें अवेलेबल है। मुझे बताने के लिए शायद से कोई था नहीं कि ये मत कर, ये कर, या फिर तो हमारा स्ट्रगल थोड़ा सा अलग था। आई वोंट से कि दीज पीपल डोंट हैव स्ट्रगल, हमारा स्ट्रगल थोड़ा अलग था, बिकॉज हमें आउटराइटली मटेरियल सामने नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑफ कोर्स बुक्स थे, बहुत से बुक्स थे फोटोग्राफी पे। तो बुक्स पढ़ के हम लोग यू नो वी यूज्ड टू गेट द नॉलेज, Right. बट sorry I lost your question, can you ask No, I again? was saying कि freelance profession Freelance, yes. की, yeah. So of course there are other sectors also जहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हो, and you can earn good money in that also. There are many magazines, design house and many companies जिनके अपने photographers होते हैं। तो it's again your choice कि अगर Newspapers आप वगैरह करना also चाहते you हैं। were telling me. Sorry? Newspapers का भी ऐसा, हाँ newspapers में भी एग्जैक्टली, ऐसा होता है, right? न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। तो अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक इनकम चाहिए, तो एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट अगर आप फ्रीलांस के बारे में पूछ रहे हो तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिजनेस। जैसे बिजनेस में होता है आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो फोटोग्राफी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, बट आई थिंक फोटोग्राफी में आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है, आपको खुद की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करनी होती है। और ये लोगों को नहीं समझता है, जनरली लोगों को समझता है कि बिजनेस है ना, मैंने पैसा डाल दिया, मैंने स्टूडियो डाल दिया तो मेरे को आउटपुट आएगा। इन्वेस्टमेंट इज नॉट समथिंग कि आप पैसा डालोगे तो पैसा मिलेगा। आपको देयर आर मेनी थिंग्स आपको इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत होती है। एंड फॉर दैट आई थिंक फ्रीलांसर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के जैसा कल नहीं होगा। अगर आज आपको पैसा आ रहा है, शायद से कल ना आए, शायद से 2 महीने के बाद बहुत ज्यादा आए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वुड suggest to everybody who wants to come in this profession. Of course लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लैमर है, पैसा है, बहुत पैसा है बहुत है। अगर आप मेहनत करोगे ना बहुत, तो पैसा हर चीज में है। उसके लिए फोटोग्राफी की जरूरत नहीं है। एनी प्रोफेशन, इफ यू, अगर आपकी मेहनत करने की आप रेडी हो उसके लिए, तो आई थिंक पैसा इवेंचुअली आ जाता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इज इट मेकिंग यू हैप्पी, आपको ये करके खुशी मिलती है क्या? बिकॉज अगर लोग कहते हैं कि अरे फोटोग्राफी में बहुत पैसा है तू चला जा, आपको खुद को वो करना है क्या? अगर सी बिकॉज ऐसा कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो जिसको इंजीनियरिंग करनी थी,
तो वो ब्रिलियंट करेगा उसमें, शायद से मैं ना कर पाता बिकॉज मेरी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब आई एम नॉट मेड फॉर इट, राइट। तो शायद से वो मुझसे नहीं होता। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मुझे ऐसे लगता है कि फोटोग्राफी और फॉर दैट मैटर एनी आर्ट विच यू आर मेकिंग कमर्शियल, आपको उसमें पहले एक्सेल करना बहुत जरूरी है। आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना होता है। आपको इट्स अमेजिंग अगर आप किसी के साथ काम कर सकते हो, अगर किसी के अंडर असिस्टेंट के तौर से काम कर सकते हो, तो आपको इंडस्ट्री बहुत नजदीकी से देखने का मौका मिलता है। राइट। क्योंकि मैं कॉलेज से सीख के डिग्री लेके बाहर आ गया, आगे क्या मुझे पता नहीं क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, मुझे पता नहीं बिल्स कैसे बनाने हैं, मुझे पता नहीं कि जब मैं कोटेशन भेजता हूँ तो कोटेशन में क्या 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 पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये इंडस्ट्री के जो बिजनेस के जो दायरे हैं, वो दायरे मुझे ऐसा लगता है आप किसी के साथ अगर आप काम करते हो या किसी के असिस्टेंट के तौर पे काम करते हो तो बहुत इजीली आपको सीखने मिलते हैं। और जब मैंने असिस्ट किया था, सो देयर इज अ ब्रिलियंट फोटोग्राफर इन इंडिया कॉल्ड प्रसाद नाइक, जो हमेशा मेरा मेंटोर रहा है और मैंने बहुत सीखा है उनसे, नॉट जस्ट अबाउट फोटोग्राफी इन जनरल। मतलब जब मैं उनके पास था तभी मुझे पता चला कि ओ ऐसी सारी चीजें हैं जो हमने कॉलेज में सीखी नहीं है। बहुत सी चीजें होती है जो फोटोग्राफर के मतलब इट कम्स आफ्टर योर फोटोग्राफी। एडिटिंग है या फिर पोस्ट प्रोडक्शन है या फिर क्लाइंट मैनेजमेंट है, आपको बिल कैसे बनाना है, ये सब आई थिंक आपको किसी के साथ काम करने से ज्यादा इजीली और ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। राइट यार, another exciting question that I wanted to ask you was कि what was your hardest shot and what is the story behind, मतलब सबसे tough picture क्या थी for you, anything जो दिमाग में आए। एक्चुअली बहुत सारी है बिकॉज एट टाइम्स ना अलग अलग ये होती है, लाइक आपके जो डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस होते हैं ना बहुत अलग होते हैं। एट टाइम्स ऐसे होता है कि मुझे ये स्पेसिफिक लाइट सनलाइट में शॉट चाहिए, तो यू हैव टू बी रेडी कि ये सन यहाँ पे आएगा और मैं क्लिक करूंगा, तो वो एक अलग चैलेंज होता है। बट आई थिंक अभी मैंने एक रिसेंट शूट किया है जिसको लाइट पेंटिंग कहते हैं। सो यू एक्चुअली पेंट अ मॉडल विद द टॉर्च। आप फ्लैश लाइट्स यूज नहीं करते या फिर आप कंटिन्यूअस लाइट डे लाइट यूज नहीं करते। रूम में कंप्लीटली अंधेरा होता है, कैमरा एक ट्राइपॉड पे माउंट होता है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और जब मैं कैमरा क्लिक करता हूँ सो जो शटर होता है वो ओपन होता है अराउंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड्स, बिकॉज अंधेरा है, लाइट अंदर आने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो हम वो मॉडल को टॉर्च से पेंट करते हैं। तो हमें पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लाइट कैसे कहाँ जा रही है। आपको फोटो क्लिक होने के बाद मॉनिटर पे दिख रहा है, लकीली अभी मॉनिटर है, डिजिटल है तो देखने मिल सकता है। बट ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत एस फोटोग्राफर है पाउलो रोवर्सी। अगर आप कोई भी सुन रहा है और अगर आपको देखना है उनका काम तो आप जाके देखिए पाउलो रोवर्सी का काम। उन्होंने बहुत अमेजिंग काम करके रखा है। ही यूज्ड टू पेंट मॉडल्स विथ लाइट्स। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय चैलेंजिंग शूट बिकॉज वो समझ में आने के लिए बहुत टाइम गया था। आई थिंक हम लोग 1.5 या 1.25 घंटे हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे टू गेट एग्जैक्ट एंगल और एग्जैक्ट लाइट कि ये क्या हो रहा है, कौन सा, बिकॉज टॉर्च का भी इंटेंसिटी अलग अलग होता है। कोई टॉर्च ऐसा होता है कि जिसका लाइट बहुत कम होता है, कोई टॉर्च ऐसा होता है जिसकी बीम बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसका कॉम्बिनेशन 3-4 शॉट्स मतलब तीन चार टॉर्चेस ऐसा भी था कि एट टाइम्स मैं क्लिक करता था और मेरा असिस्टेंट और हमारे जो स्टाइलिस्ट थे उस शूट पे शौनक, हम तीनों पेंट कर रहे थे। सो शौनक इज लाइक कि मैं उसका गारमेंट पेंट करता हूँ, तू फेस पे लाइट फेस पेंट कर, and my assistant was painting the wall. So by painting you mean actually putting the light with the torch, right? Exactly, actually putting the light. अगर मैं टॉर्च, अगर एक चीज है मेरी ये टॉर्च है तो आई एम लाइक मूविंग द टॉर्च एंड जैसे आप ब्रश के साथ पेंट करते हो वैसे आप टॉर्च के साथ पेंट कर रहे हो। राइट। तो
सो दैट इज अगेन अ टीम वर्क। मुझे उसमें ये समझ में आया कि ये सिर्फ जो पिक्चर है ना वो सिर्फ फोटोग्राफर की नहीं होती, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था फॉर मॉडल ऑल्सो, कि 7 सेकेंड के लिए, अगर 5 सेकेंड के लिए कैमरा का शटर खुला है, शी कांट बी मूविंग, अदरवाइज पिक्चर ब्लर होंगी। तो शी वाज एब्सोल्युटली स्टिल। उसको कहा गया था कि आप प्लीज सांस मत लो। आपको समझ रहा है कि आपको कितना पैशनेट होके काम करना पड़ता है। शी वाज होल्डिंग हर ब्रेथ फॉर 5 सेकेंड्स फॉर द शॉट। और वो सब कलेक्टिव होता है, मतलब मेकअप आर्टिस्ट है, स्टाइलिस्ट है, मॉडल्स है। सो बट दैट वाज वेरी चैलेंजिंग शूट आई थिंक, बट करने में बहुत मजा आया था। अनदर क्वेश्चन यार जो मैं पूछना चाहता था वो ये था कि व्हाट डू यू सी बेसिक मिस्टेक्स क्या होती हैं जो लोग फोटोग्राफर नहीं होते हैं, बट कई बार हम किसी दोस्त को बोलते हैं कि यार फोटो खींच दे, या फिर ओल्ड पीपल लाइक हम आपके पेरेंट्स को बोलें कि फोटो खींच दो या कुछ। तो बेसिक मिस्टेक्स क्या होती हैं जो एक इमेच्योर नॉन फोटोग्राफर, लेट्स से नॉन प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो करता है? सम टिप्स दैट यू कैन गिव टू पीपल। Again, I don't know कि basic mistakes, because technically जो again वो there is no नहीं करना चाहते, mistake, but let's say they don't want to do that, yeah. सबसे important चीज, अगर आपका ये कैमरा है या फिर फोन है, चलो वी आर टॉकिंग अबाउट पिक्चर, फोन, राइट, ये फोन है ना, आप एक तो ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, ये एंगल नहीं होता है। ये एंगल नहीं होता है। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि फोन ऐसे करके या कैमरा ऐसे करके, unless and until you need that angle for a specific reason, right? Because ऐसे भी शॉट्स है जो टेढ़े लिए हुए हैं, बट उसके पीछे रीजन है, पर्पस है। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो सीधा पकड़िए या फिर हॉरिजॉन्टल पकड़िए। जस्ट नो योर दिस थिंग कि आपको हॉरिजॉन्टल लेना है, वर्टिकल लेना है, या फिर लोगों को इजीली समझने के लिए आपको लैंडस्केप लेना है या फिर पोर्ट्रेट लेना है। वो टेढ़ा वेढ़ा मत कीजिए। तो बिकॉज क्या होता है ना, एस्थेटिक्स के भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपको अगर आपको इंटरेस्ट है किसी को इसमें एक्सेल करने के लिए, आई थिंक यू शुड गो एंड रीड अबाउट व्हाट इज एस्थेटिक, व्हाट इज गोल्डन रूल अबाउट फोटोग्राफ। तो ये जो आप जितना पढ़ोगे ना, उतना आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या फिर ये करना है। और ऐसे तो आई थिंक बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का एक छोटा सा ये नहीं समझता लोगों को वेयर टू स्टॉप, कहाँ रुकना है ये समझना बहुत जरूरी है। और वो भी आई थिंक वो थोड़ा एक्सपीरियंस से आ जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाता है। जितना आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको एक चीज आने लगती है ना, तो आप वो बहुत मजा आने लगता है कि मुझे करना है। तो आप एडिटिंग भी करोगे, आप लाइट्स भी करोगे, आप ये भी करना है, वो भी करना है, और फिर ना वो मेन इसेंस जो होता है ना, कभी कभी वो चला जाता है उस पिक्चर का। ये मैंने अपने मेंटोर से सीखा है। ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि लेस इज मोर। अगर आप प्रसाद नाइक का काम देखो तो एट टाइम्स इतना सिंपल शॉट है उनका। एक शॉट मुझे अभी भी याद है, आमिर खान का एक शॉट है, आमिर खान का बैक शॉट है, उसमें आमिर खान का फेस नहीं है, बट वो गजनी के टाइम में उन्होंने जो हेयर स्टाइल की थी, और वो यू रिमेम्बर एक जो लाइन बनाई थी, राइट, गंजे आमिर खान, एग्जैक्टली गंजे उसमें, तो आमिर खान की बैक है, और आई थिंक उसमें उसकी वो लाइन दिख रही है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। और जब मैंने उनके साथ काम किया तो ये सीखा कि मिनिमलिज्म में बहुत ब्यूटी होती है एट टाइम्स। तो आप जैसे आप आई थिंक फॉर एक्टर्स आल्सो यू नो कि इट्स ओके ओवर एक्टिंग करो, क्योंकि वो अंडर कर सकते हैं बाद में, यू कैन अंडर प्ले। आप एक्सप्लोर करो, आप करो, देयर इज नो मिस्टेक, आप करो, आपको खुद को ही बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। मुझे भी ऐसा लगता है जब मैं 1 साल पहले के काम देखता हूँ मेरे खुद के, मुझे ऐसा लगता है अरे थोड़ा ज्यादा एडिटिंग हो गया, करने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग स्किन बहुत एडिट करते हैं आज। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है लोगों को कि परफेक्ट स्किन, परफेक्ट मतलब तिल है तो तिल भी निकालना है, इसलिए तिल क्यों निकालना है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट पर्सन। अगर एक चीज है तो है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि आपको पिक्चर्स प्रेजेंटेबल बनानी है, तो एडिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं
कॉलेज से बाहर पास आउट हुआ, तभी एडिटिंग इतनी बूम में नहीं थी, इतने एप्स तो छोड़ो, फोटो हाँ, तभी पीपल यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन कि अरे इसने तो फोटोशॉप किया है, ऐसे होता ओ, था। बट मुझे तभी भी ऐसे नहीं लगा कि फोटोशॉप यूज करना कोई बुरी बात है, बिकॉज सर्टेन चीजें एनहांस, आपकी कैमरा कर सकता है, सर्टेन चीजें आप पोस्ट में कर सकते हो, उसके रीजंस कुछ भी हो, शायद से आपको वो लाइटिंग या फिर वो इफेक्ट लाने के लिए कैमरा पे उतने या पैसे नहीं है आपके पास, या बजट नहीं है आपके पास, धुआं धुआं अगर मुझे चाहिए, तो अगर मैं फोटोशॉप पे स्मोक क्रिएट कर सकता हूँ तो व्हाई नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट राइट, अगेन इट कम्स टू दैट कि आपको पता होना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हैं। ट्रू, तो अगेन आप व्हेन यू वर आस्किंग मी कि वन ऑफ द डिफिकल्ट शॉट्स ना, हमने अभी एक शूट किया था जिसमें डू यू नो द कलर्ड स्मोक, यू हैव दिस, या आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, बट अगर वो pink and आप, you get it in all हाँ हाँ blue and हाँ, all those colors, अलग yeah. डिफरेंट डिफरेंट, सो वी वांटेड टू शूट दैट, और हम लोग ने स्टूडियो वूडियो बुक किया एंड वी वर लाइक यार, एंड बाद में हमें पता चला कि स्टूडियो में ये करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज सब बंद है, and you're Oh, so you use creating of, breathing, because yeah. in a way it's a fire kind of thing, it is a fire, you have to put a fire and then उससे वो धुआं निकलता है, it's a firecracker only in one of, Okay. in a way। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज हमारे पास 6 शॉट्स थे, मतलब 6 चेंजेस हमें करने थे, और हमारे पास कुछ 8 वो स्मोक बॉम्ब्स थे। Right. सो एक शॉट के लिए एक्चुअली हमारे पास एक ही ये था, तो स्मोक Oh, बॉम्ब खोल दिया, मॉडल ने परफॉर्म करना चालू कर दिया, खट 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 खट, उसमें yeah. से जो मिला है वो मिला है। वो मिला है, that's it. तो Yeah. एट टाइम्स वो होता है, बट हाँ देयर आर नो मिस्टेक्स, बट Hmm. आप अपने काम को भी देखो, आप Hmm. आपने जो खुद ने किया है वो भी देखो, आपका पुराना काम भी देखो, सी Right. व्हाट यू आर नॉट लाइकिंग इन इट, आप ये देखो कि मुझे ये इसमें क्या पसंद, अभी भी देयर आर पिक्चर्स जो मुझे अभी भी पसंद है खुद के, जो मैंने 5 साल पहले खींचे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये अभी भी मुझे क्यों पसंद है, और या फिर कोई पिक्चर है मुझे ये क्यों पसंद नहीं है। तो Okay. आप, बिकॉज दैट इज ऑल्सो स्टडिंग ना, दैट इज ऑल्सो लर्निंग Hmm. फ्रॉम योर पिक्चर्स और somebody else's पिक्चर्स, क्योंकि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ना आपको उसके बारे में पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। आप एक्सपीरियंस तो कर ही रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हो, बट Hmm. यू हैव टू बी कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, या फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो Hmm. वो एक दो चीजें तो ये है, स्किन रिटचिंग तो बहुत, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है जब मुझे पता है कि अरे ऐसे नहीं दिखती स्किन, सब Right. लोगों को पता है, True. तो वो एक है। Another question यार I want to ask you was that कई लोग होते हैं जो वो बोलते हैं यार मेरी फोटो अच्छी नहीं आती, या फिर मैं फोटोजेनिक नहीं हूँ, या छोड़ो ओ मत खींच। या और आज के जमाने में तो इट्स काइंड ऑफ यू कांट लिव विदाउट having basic pictures, because like even if you make Facebook or LinkedIn, or I'm not talking about TikTok, but just generally, suppose your name is, my name is Harsh Nagar, there are 7 other people whose name is Harsh Nagar, so until unless I put a picture, मतलब necessity हो गई अब तो, even on एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। WhatsApp and so many other things. So what do you feel, ऐसा कुछ होता है फोटोजेनिक, या ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है, या what is it like? फर्स्ट ऑफ ऑल आई पर्सनली डोंट बिलीव इन अ टर्म ऑफ बीइंग फोटोजेनिक। Hmm. एक इंसान की फोटो अच्छी या बुरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट थिंक कि कोई पिक्चर बुरी होती है। Right. वो शायद से इट जस्ट लैक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एस्थेटिक्स, Hmm. दैट्स व्हाई आपको, आप अगर 10 सेल्फी ले रहे हो उसमें से आप बोलते हो ये अच्छी आई है, बाकी Right. की 9 अच्छी नहीं आई है, डिलीट कर दो। हाँ. बट इट इज ऑलवेज अबाउट राइट एंगल्स, Hmm. it's always about right lighting. Right. When it comes to professional, when it is very important about right makeup, Hmm. right hair. True. हमारी इंडस्ट्री में हेयर स्टाइलिंग को बहुत ही Third grade. मतलब हाँ. इट्स वेरी अंडररेटेड आई फील। True. मतलब हाँ. मेकअप तो है बट हेयर हाँ. पे ज्यादा लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, और लोगों True. को नहीं समझ में आता है कि बिकॉज हेयर इज समथिंग ना विच कैन चेंज द Change. एंटायर लुक, Yeah. एब्सोल्युटली, लाइक बहुत एक सेकेंड की देरी होती है और सब Hmm. चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ हेयर।
ट्रू तो ट्रू ट्रू। ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ यू आर टेकिंग सेल्फीज और इवन इफ समबडी इज टेकिंग योर पिक्चर्स, अगर ये मैं एक्टर या मॉडल के हिसाब से बताना चाहूँ तो यू शुड नो योर एंगल्स. उसके लिए भी एक्सरसाइजेस है. यू नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, यू नीड टू सी कि मैं कौन से एंगल से बेटर लग रहा हूँ. मैंने बचपन में एक बात पढ़ी थी रेखा जी के बारे में. Rekha was is one of the brilliant actors. Why? Because उन्हें पता होता था कि अगर मैं ये लाइन कह रही हूँ और मैं यहाँ से यहाँ आ रही हूँ तो कैसे तो लगेगा, कैसे कितने स्पीड में आना है. लाइट मेरे कंधे पे आएगा या मेरे कान पे आएगा या मेरे नाक पे आएगा. मुझे कितने इंटेंसिटी से बात करनी है. आपने उत्सव देखी है? उत्सव नाम की उनकी जो एक फिल्म थी, बहुत बहुत ही यू शुड से ब्यूटी एस्थेटिकली बहुत सुंदर फिल्म बनाई है. तो उत्सव का पूरा लुक उन्होंने डिजाइन किया था, ऐसे मैंने सुना है. सो बीइंग एन एक्टर उनकी जरूरत नहीं थी. इट्स नॉट हर जॉब, बट शी वाज इन्वॉल्वड इन दैट कि क्या मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझ पे क्या सूट हो रहा है, क्या सूट नहीं हो रहा है. तो ये एज अ मॉडल, एज एन एक्टर भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बारे में पढ़ो, अपने बारे में जानो, आपकी बॉडी क्या है, आपके बॉडी टाइप क्या है, आपके एंगल्स क्या है. और ये तो फोटोग्राफर पे तो बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि अगर मुझे आपकी अच्छी तस्वीर लेनी है तो मुझे वही तो है ना कि मुझे समझना आपको समझना पड़ेगा पड़ेगा कि आपका स्किन टोन क्या है, आपका स्किन का टेक्सचर क्या है. बिकॉज दो गोरे लोगों में भी बहुत फर्क होता है, दो सावले लोगों में भी बहुत फर्क होता है. टेक्सचर होता है, फीचर्स होते हैं आपके, आपकी बालों का शाइन मैटर करता है. सो आई थिंक everything when everything comes together na, that becomes a good picture, and that is what is expected from a professional photographer. कि जो इमेजेस लगती है कि अरे क्या एफर्टलेस शॉट, ऐसा लग रहा है कि मॉडल जस्ट सिर्फ हंस रही थी और आपने जैसे कहीं दूर से क्लिक कर दिया है. बट नहीं, इसको बहुत मेहनत से मॉडल भी वो फेक कर रही है शायद से वहां पे. शी नोज हाउ टू फेक द शॉट, हाउ टू फेक द लाफ, हाउ टू लुक दैट कि ये कैंडिड है. मुझे पता होना चाहिए कि मुझे लाइटिंग कैसी चाहिए जो कैंडिड और नेचुरल लगे. जो मैंने क्रिएट की हुई है वो ऐसा नहीं कि वो डिलाइट है, नेचुरल. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फोटोजेनिक ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप प्रॉपर एंगल्स, लाइट्स, मेकअप. और बीइंग अ फोटोग्राफर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट फैशन. अगेन व्हेन इट कम्स टू फैशन फोटोग्राफर, फैशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, व्हाट आर द ट्रेंड्स, व्हाट आर थिंग्स कॉल्ड लाइक स्मोकी आईज is the generally used term, but smoky eyes करने के 1000 तरीके हैं. तो आपको उसमें से क्या चाहिए, आपको आपको जो कहना है, आपको जो मेकअप आर्टिस्ट को बताना है, आपको खुद को बताना है कि मुझे ये चाहिए, आपको वो टर्मिनोलॉजीज पता होनी बहुत जरूरी है. आप जब कह रहे हो कि मुझे जेट बैक हेयर चाहिए, तो जेट बैक करने के भी बहुत तरीके हैं. तो आई थिंक यू नीड टू नो कि मेकअप का बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है. बिकॉज बहुत बार फोटोग्राफर्स कहाँ अटक जाता है पता है. फोटोग्राफर्स शूट करते वक्त उनको ऐसा लगता है कि अरे मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है. बट व्हेन यू नो कि अरे लिपस्टिक का कलर नहीं जा रहा है तेरे गारमेंट के साथ, जस्ट चेंज द लिपस्टिक कलर. इट्स नॉट माई जॉब, इट्स अ मेकअप आर्टिस्ट जॉब. बट इट्स व्हेन आप सब जब एक साथ आके काम करते हो ना, जब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि हाँ मेकअप तो वो कर देगा, मेरा टेंशन नहीं है. इट्स योर जॉब बिकॉज यू आर इवेंचुअली, आप सेट पे डायरेक्टर हो. आप डायरेक्ट करते हो क्योंकि आपको पता है ना सब चीजें एक साथ जब आती है तो वो एक साथ कैप्चर आपको करनी है. मेकअप आर्टिस्ट अपना मेकअप करेगा, स्टाइलिस्ट अपना स्टाइलिंग करेगा, डिजाइनर अपने कपड़े देगा. बट वो एक साथ जब आएगा तो वो एक साथ आने के बाद जो फ्रेम क्रिएट हो रही है वो आपको क्रिएट करनी है. तो यू नीड टू नो कि क्या वर्कआउट हो रहा है, क्या वर्कआउट नहीं हो रहा है. और उसके लिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बाकी सारी इंडस्ट्रीज की भी नॉलेज होनी जरूरी है बहुत. राइट यार. नाउ वन क्वेश्चन व्हिच इज थोड़ा सा डीप, बट आई नो दैट you are into spirituality, or I also have a channel on which talks about mental health, and there also spirituality is one of the most important things. So
The question that I want to ask you is कि spirituality ने आपको as a person, as a photographer कितना help किया है और कैसे help किया है? आई थिंक मैं कहूँगा बहुत ज्यादा हेल्प किया है। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो लोगों को सुनना होता है ना कि अरे ही इज इनटू स्पिरिचुअलिटी, या फिर आई एम नॉट दैट मच इनटू स्पिरिचुअलिटी, या फिर ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है Everybody everybody is. is spiritual, True. everybody is on their spiritual journey. Right. जो सेकंड स्टैंडर्ड में है वो भी कुछ करेगा आगे जाके, उसको भी कुछ करना है। जो 10th स्टैंडर्ड में है, जो 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड में फर्स्ट आया था, वो भी, उसका भी एक अलग जर्नी है। जो फेल हुआ था उसका भी एक अलग जर्नी है। सो वी ऑल आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, ऐसे मुझे लगता है। तो आपको पता हो या ना पता हो, आप उस पे हो, दैट इज वन थिंग। उसके साथ जुड़ना बहुत अलग चीज है। कॉन्शियसली आप जब ये होता है, ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं बट ज्यादा पढ़ाई नहीं करते। वो उनको पता नहीं होता है कि मैं होशियार स्टूडेंट हूँ, तो वो आके एग्जाम देके पास होके अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाते हैं। तो दोज आर दोज पीपल की जिनको पता ही नहीं है। बट देयर आर स्टूडेंट्स की उनको पता है कि वो एक्सीलेंट है और उनको एक्सीलेंट रहना है, उनको मेहनत करनी है। सो आप जितना कॉन्शियसली काम करते हो ना, उतना आई थिंक connecting towards the spirituality, I think conscious effort is also very important. So I think that helped me a lot after after like I started my career around like 12 years back. So I also faced the similar issues कि पैसे नहीं आ रहे हैं। I have faced कि लोग मेरे पैसे ही नहीं दे रहे हैं, काम हो गया चेक्स ही बाउंस हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है यार, मतलब ये थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है, मैंने काम किया मेरे को पैसे तो मिलने चाहिए। एंड देन देयर वाज अ टाइम, और वैसे कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त होता है। डेस्टिनी, डेस्टिनी है। आई वोंट से कि बिकॉज इट साउंड्स वेरी डिफरेंट। मगर आप इफ यू आर ओपन एंड विलिंग टू एनीथिंग ना, अगर आप सीखने कोई भी चीज सीखने के लिए अगर आप विलिंगनेस है आप में, तो आप इजीली वहां तक पहुंच सकते हो। अगर मुझे पता है कि अच्छा चलो मुझे आज यहाँ से निकल के किसी और के घर जाना है, तो मैं सोचूंगा कि अरे मेरी तो कार बंद पड़ी है यार, कार नहीं है तो कैसे जाऊं। अगर मुझे जाना है तो मुझे बाहर ऑटो मिलेगी, रिक्शा मिलेगी, बस मिलेगी, या कोई मुझे लिफ्ट दे देगा। इट्स वेरी सिंपल। तो जब मुझे ये पता चला ना कि आपको क्या चाहिए, उस पे फोकस करो, कैसे चाहिए उस पे फोकस मत करना। तो दैट आई थिंक हेल्प्ड मी। जो होता है ना कि तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस मांगो, कैसे चाहिए वो डिसाइड करेगा। योर यूनिवर्स विल डिसाइड हाउ टू गिव, हाउ टू मेक यू हैप्पी। अभी आपको हैप्पीनेस भी चाहिए और आप अपने वेज उसको बताओगे कि मुझे कार मिलेगी तो ही मैं हैप्पी हूँगा, ऐसा नहीं होता। Happiness is a feeling. True. So I think when you get into spirituality, again, spirituality and being spiritual, being religious are totally different things. Different things, right? So I think spirituality, what is for me is जो आपको empower करती है। आपको समझता है कि मैं जो हूँ वही ये यूनिवर्स है, और जो ये यूनिवर्स है वही मैं हूँ। और ये बहुत it sounds very bookish or it sounds very huge, but इतना सिंपल थॉट है यार, ये बहुत सिंपल थॉट है। और ये मुझे इंटरेस्टिंगली पता चला जब देयर आर, और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेरे लाइफ में ना हमेशा ऐसी विमेन, बहुत सारी विमेन आई हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। There is always a female teacher who helped me in my studies. There is my mom. There is an actor called Trupti. I don't know if you know her, Trupti Khamkar. She's also a very good theater actor. No, so she introduced me to The Secret, the law of attraction. What is law of attraction? Then I started learning कि ये क्या होता है। उसके बाद में I met my friend Neha, who's a healer. Then my friend Radhika, who's a past life regression therapist. और ऐसे बहुत से लोगों को मैं मिला हूँ जो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं यार।
when you have that openness ना, तुम्हें सीखने पे भी मजा आता है और तुम सीखते भी हो. So okay, I have to cut you, yaar, because yeah. I have last 9 seconds. But big thank you for you to agreeing to do this and coming and